Hello students, very good morning to all of you. Welcome to day 59, penultimate day. Penultimate you must know, second last के पहले वाला. If I targeted 60, it is penultimate. You should now give your comment whether I should continue after 60 or not. You should give your opinion. I may continue because words are unlimited. We may continue, but your opinion matters. So, if you wish me to continue, just give me your opinion whether I should continue this or not. First, the questions of day 58. Dilatory, causing delay, slow. Heretical, one who never accepts the tradition, goes against the tradition. Brisk, very fast, opposite to dilatory. And conformist, opposite to heretical. One who obeys the traditions or the rules or laws. Swift, very fast. Maverick, one who goes against the established norms and traditions, जो traditions और norms के opposite जाता हो, idea रखता हो. Tardy, very slow. And adherent, जो अपने मत पे बात को पालन करने वाला, that is conformist. So, dilatory, opposite swift. Heretical, opposite adherent. Brisk, fast, opposite slow, tardy. And conformist, obeying norms and traditions, opposite maverick, going against the traditions. Now the sentences. He is non-conformist, not accepting the traditions. Ideas has made him an iconoclast. Similarly, both are similar in meaning, so it's quite true. The lethargic, slow pace of development has turned many believers into one who opposes, dissenters. Very true. Dissent, विरोध करना, विरोधी. The searing months, that is very hot months of the year, जो गर्मी के जो महीने हैं, seem to pass at a creeping pace. ऐसा लगता है कि बहुत धीमे धीमे वो बीत रहे हैं. नेचुरली ये तो बहुत सही है ना, हम सब लोगों का ओपिनियन यही रहता है. द समरी डेज, गर्म वाले दिन, सिम ब्रूमस, वेरी ठंड है. कंप्लीटली फॉल्स. एक्सट्रीमली कोल्ड, फ्रिजिड, आर्कटिक, ग्लेशियल. कबीर वॉज ए स्टॉन्च मीन्स कट्टर, हेरेटिक. वो कबीर परंपराओं के एकदम विरोध में रहते थे. एंड द ट्रेडिशनलिस्ट, जो परंपराओं का पालन करते थे, रिगार्डेड हिम एज सल्ट्री, बहुत गर्म दिन का, कोई कनेक्शन नहीं है. The sentence is disconnected. Sultry means very hot days, temperature wise. Now, abate. We have done this word. Abatement is, the noun is there. Abatement, कम होना, धीरे धीरे कम होना. Assert oneself, किसी चीज का दावा करने के सेंस में, अपने मत को जोरदार तरीके से व्यक्त करना. Bleathness has come from bleed. Bleed is adjective. And quite happy, carefree, बहुत अधिक खुश, चिंता मुक्त. Bleed, bleathness, happiness. Blues, look at this. Blues means depression, opposite to bleakness, निराशा. Cheerfulness, bleakness, खुशी. Dejection, निराशा, blues. Despondency, निराशा. That is why this world is dejected, निराश. Despondency is despondent, निराश. This one is adjective, this one, these two are nouns. Dumps, nirasha. He is down in dumps, very depressed. Flounder,
किसी चीज से स्ट्रगल करना, दैट इज टू स्ट्रगल इन अ हेल्पलेस वे। जैसे पानी में कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं ना, तो हम लोग जो हाथ पांव मारते रहते हैं, वी आर फ्लाउंडरिंग। टू स्ट्रगल इन अ हेल्पलेस वे। गेटी, बहुत अधिक खुशी, चीयरफुलनेस। ग्ली, बहुत अधिक खुशी, इसलिए इसका एडजेक्टिव बनता है ग्लीफुल, वेरी हैप्पी। एंड ग्ली एंड गेटी मीन्स हैप्पी, अब खुशी, हैप्पीनेस। ग्लूम, निराशा, ग्लूमी, निराशाजनक। हिलैरिटी, नाउ लुक एट दिस, द वर्ड हैज कम फ्रॉम हिलैरियस, एंड हिलैरियस इज वेरी मजाकिया, उसी का ये नाउन है हिलैरिटी, बहुत अधिक खुशी। इंक्रीज, बढ़ना। इंटेंसिफाई, किसी चीज का तेज होना, इंक्रीज करना। जॉलिटी, यू मस्ट हैव सीन दिस, द एडजेक्टिव ऑफ दिस वर्ड, जॉली, बहुत अधिक खुश रहने वाला व्यक्ति, उसी का नाउन होता है जॉलिटी। लर्च, दैट इज ऑल्सो टू मूव, फ्लाउंडर वाले मीनिंग में। टू स्ट्रगल इन अ हेल्पलेस वे, कहीं किसी जगह पे एकदम फंस जाना, मतलब बहुत असहाय टाइप सा, हाथ पांव मारना। मेलैंकली, निराश, उदास, दुखी। मेरीमेंट, द वर्ड हैज कम फ्रॉम मेरी, बहुत अधिक खुश, एंड मेरीमेंट मीन्स खुशी। देर आर गुड मेनी वर्ड्स, गेटी, ग्ली, जॉलिटी, मेरीमेंट। रील, रील वाला लर्च के साथ, मतलब उस चीज से परेशान होना, जूझना। रेवेलरी, द वर्ड हैज कम फ्रॉम रेवेल, रेवेल मीन्स टू एंजॉय समथिंग, and revelry, do not confuse this word with rivalry. Rival is different word. Revelry, that is merriment, खुशी, आनंद। स्टैगर, वही लड़खड़ाने के सेंस में, फ्लाउंडर वाले मीनिंग में। स्टम्बल ऑल्सो फ्लाउंडर वाले मीनिंग में। स्टटर ऑल्सो फ्लाउंडर वाले मीनिंग में, मतलब लड़खड़ाना, परेशान होना, जूझना, इन अ हेल्पलेस वे। टॉटर ऑल्सो सिमिलर मीनिंग। वेन, टू लिसन ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम होना, इंक्रीज दिया हुआ उसका उल्टा हो जाएगा वेन, हम लोग किए हुए वर्ड ये। एंड वेवर ऑल्सो, दैट इज लड़खड़ाने के सेंस में। वेवर, इफ यू नो, वैसिलेट, हिचकिचाना किस चीज में। नाउ लुक एट द वर्ड mirth, adjective is mirthful, and meaning amusement, expressive laughter, बहुत अधिक खुशी, that is mirth। खुशी का merriment, glee, cheerfulness, hilarity, gaiety, jollity, revelry, blitheness, all these means खुशी। opposite, निराशा, दुख। gloom, despondency, dejection, blues, dumps and melancholy। निराशा, खुशी। falter, word is quite common। falteringly is adverb। now first meaning, to move unsteadily or hesitantly, मतलब लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना। फ्लाउंडर, स्टैगर, टॉटर, स्टम्बल, स्टटर, लर्च, रील। If you are using any of these words, you are not walking steadily. You are this way or that way, walking unsteadily because of any cause. And assert oneself, I don't know, मतलब बहुत confidence के साथ behave करना। Second meaning, टू वीकन इन इंटेंसिटी, किसी चीज के प्रभाव में, तीव्रता में कमी आना। प्रोग्रेस, पर्पस, किसी चीज का जो तीव्रता था उसमें कमी आ रही है, एंड दैट इज वेवर, वेन, अबेट, कमी आना, और उसका तीव्रता बढ़ना, इंटेंसिफाई एंड इंक्रीज। सो टुडे ऑल्सो दीज वर्ड्स वर क्वाइट इंटरेस्टिंग।
and the words that were there, merriment, खुशी का जो वर्ड था, बहुत सारे अच्छे वर्ड्स थे. रिवीजन करते रहो. स्टॉक्स अभी मजबूत हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है. अगर आप कंटिन्यू कर रहे होगे तो ऑफ एंड ऑन नहीं, रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट. टू लर्न एनीथिंग यू शुड बी रेगुलर, कंसिस्टेंट एंड caring. Thank you for being with me. See you with the next video. Thank you.